تہ دل سے آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب قاری عبد الرحمن سدیس صاحب۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ آیت 10 جملوں پر مشتمل بھی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے۔ یہ کس نے تعین کیا؟ یہ کسی نحوی نے، کسی ادیب نے، کسی منطقی نے طے نہیں کیا ہے۔ ثناء اللہ صاحب مدنی۔ سامعین اکرام، بچے مستقبل کی امید ہیں اور امیدوں کا مستقبل ہے۔ مولانا فیض الرحمن صاحب ندوی۔ رب کا فرمان ہے، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب۔ قرآن نے کہا، خوب کہا، یہ پیشانی اللہ کے سوائے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، انسانوں کے سامنے ڈکلیریشن۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا۔ اب باری ہے موجودہ دور کے اسلام کے مشہور اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن جسمانی ڈاکٹر چھوڑ کر روحانی ڈاکٹر بن گئے، اور آپ کا خصوصی مطالبہ ہے تو قابل ادھیان۔ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو اس میدان میں نہایت ہی مہارت عطا کی ہے، تاہم آپ اپنے آپ کو مقابل ادیان کا ایک ادنا طالب علم شمار کرتے ہیں۔ آپ کا موضوع سخن ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معروف اور مدلل انداز میں سامعین کے دلوں کو منور کریں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوئیں گی۔ اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ آتا ہے۔ دعویٰ کی معنی ہوتی ہے بلانا، an invitation۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کا ذکر نہیں کرنے والے ہیں، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا۔ اصلاح کی معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ اصلاح ہم مسلمان سے کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمان کے لیے، اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے،
क्यों मैं कह रहा हूँ कि सूरह तौबा कुरान मजीद की सबसे सख्त सूरत है? क्योंकि ये एक वाहिद सूरा है सारे कुरान मजीद में जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहीम है। वरना हर सूरा कुरान मजीद में 114 सूरा है और हर सूरा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, लेकिन सूरह तौबा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी अहलिया के साथ या अपनी वालिदा के साथ मुंबई के सड़क पे चल रहे हैं, मशहूर सड़क लिंकिंग रोड, और अगर एक लफंगा आपकी अहलिया का या आपकी वालिदा का हैंडबैग छीनकर भागता है, आप क्या करेंगे? बट नेचुरल आप उसका पीछा करेंगे, और जब आप उस लफंगे को पकड़ेंगे तो आप नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप कहेंगे ए भाई साहब हैंडबैग वापस दो ना गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब हैंडबैग वापस दो ना टांग तोड़ दूंगा। आप मौजू पे फौरन आएंगे, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप मौजू पे फौरन आएंगे। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली चंद आयतों में जिक्र होता है एक मुआहदा मुसलमान और मुश्रिक मक्का के बीच, और ये मुआहदा एक तरफा मुश्रिकों ने तोड़ दिया था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्ष नंबर 5 पे आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं आपको 4 महीने की मोहलत देता हूँ वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्रिकों को तंबीह देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजू पे फौरन आ जाते हैं। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि सूरा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्स नंबर 24 में जिक्र होता है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हम मुसलमान से मुखातिब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल इन काना आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, वो अबनाउकुम या आपके बेटे हो, वो इख्वानुकुम या आपके भाई हो, वो अज़वाजुकुम या आपके बीवियां हो, वो अशीरतुकुम या आपके रिश्तेदार हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके वालिद हो, आपके बेटे हो, आपके भाई हो, आपके बीवियां हो, आपके रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंटिन्यू करते हैं वो अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीज आपके वालिद, आपके बेटों, आपके भाई, आपके बीवियां, आपके रिश्तेदार, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, तो ठहरो अल्लाह आपके ऊपर तबाही लाएंगे, अल्लाह आपको हलाक कर देंगे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक लोग को कभी सीधी राह नहीं दिखाते। अक्सर हम मुसलमान से पूछते हैं और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ किस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? किससे करते हैं? किससे करते हैं? माशाअल्लाह अल्लाह से। बेशक आसान सवाल, जवाब भी आसान। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं तो जवाब है अल्लाह। एक जवाब, एक सा जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे और अगर आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को से बुरी बात करता है, आपकी वालिदा को बहुत गालियां देता है, आप जब शाम में वापस लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को बहुत गालियां दिया बिना वजह, तो आप क्या करेंगे? कोई कहता है मारेंगे, कोई कहता है मैं तंगड़ी तोड़ूंगा, कोई कहता है मैं जान ले लूंगा। अगर कोई आपकी वालिदा को बहुत गालियां देता है बिना वजह तो आपको उसको मारने का है,
आपको उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये बात सही है कि कोई आपकी वालिदा को बहुत गालियां देगा बिना वजह, तो हम देखेंगे क्या उस शख्स को सबक सिखाएंगे। अगर हम नहीं बदला ले सकते तो दूसरे को भाड़े पे ले आएंगे, लेकिन उस शख्स को सबक सिखाएंगे। सिखाएं क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बेशक, क्योंकि हम अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो अगर कोई शख्स अपनी वालिदा को बहुत गालियां देता है बिना वजह, तो हम देखेंगे कि उस शख्स को सबक सिखाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरे मरियम में सूरा नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, वो लोग ईसाई लोग कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना। लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, ये अल्लाह के लिए सबसे बुरी गाली है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन, अगर आसमान को थोड़ा भी जज्बा होता तो फट उठता। वतनशक्कुल अर्ज़, और ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबाल, और ये पहाड़ गिर पड़ते। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना तो आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती और ये पहाड़ गिर पड़ते। मगर हम मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिद से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपने बीवियां से ज्यादा, मगर हकीकत में क्या इसके ऊपर अमल करते हैं? हम कहते हैं कि हम अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं, मगर हकीकत में क्या इसके ऊपर अमल करते हैं? अगर कोई अपनी वालिदा को गालियां देता है तो हमें उसको मारने का है, हमें उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। यहाँ रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मार पीटो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी तंगड़ी तोड़ो, मगर अगर हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना, तो कम से कम आप मुसलमान कम से कम अपना मुंह तो खोलो, कम से कम इतना तो कहो कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। दावत हमारा फर्ज है, हम इस फर्ज को भूल चुके हैं। हमारा फर्ज है कि हम इस्लाम का पैगाम गैरों तक पहुंचाए। आज के जो हालात है, जो गैर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, काफी हद तक उसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम इस्लाम का पैगाम, कुरान मजीद का पैगाम गैरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अक्सर मैं मुसलमान से पूछता हूँ कि आप दावत क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इल्म की कमी है। इंशाअल्लाह जिस दिन हम आलिम बनेंगे उस दिन हम दावती काम शुरू करेंगे। अगर आप ठहरेंगे तब तक आप एक आलिम बनेंगे इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, तो वक्त कभी आएगा ही नहीं। अगर आप ठहरेंगे एक आलिम बनने जैसे शेख अहमद दीदात के जैसे, तो वक्त कभी आएगा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी में मौजूद है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर आप एक भी आयत जानते हैं सही तरीके से इस्लाम के मुतालिक, तो आपका फर्ज है कि आप गैरों तक पहुंचाएं। हर मुसलमान जानता है क्या सिर्फ एक खुदा है, कम से कम वो तो कहो। हर मुसलमान जानता है क्या अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कम से कम वो तो कहो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लोग खसारे में हैं, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है, इल्ला लजीना आमनू, जो लोग ईमान रखते हैं, व अमिलुस सॉलिहात, और जो अच्छे अमाल करते हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और जो लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। अगर एक आदमी को जन्नत पाने का है तो 4 चीज जरूरी है, ईमान, अमल सालिहात, दावत देना और लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों चीजों में से एक भी चीज गायब है तो एक आदमी जन्नत में नहीं जा सकता है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप हज पे गए हैं, मगर आप दावती काम नहीं करते तो आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अगर अल्लाह चाहे आपको माफ करना चाहे तो अल्लाह के इख्तियार में, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4
आयत नंबर 64 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116। अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कुरान मजीद की चंद आयत पेश करना चाहता हूँ। सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33 और सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ताकि वो सारे मज़हब पे गालिब होएगा। Islam is just trying to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is just trying to supersede them all. ये अल्लाह का वादा है। दीनुल इस्लाम, दीनुल हक, सारे मज़हब पे गालिब होएगा, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, इस्लाम सारे मज़हब पे गालिब होएगा। और अल्लाह ताला फरमाते वलौ करिहल मुश्रिकून, और कितना मुश्रिक लोग नहीं चाहते हैं। दो जगह ये मौजूद है और एक जगह मौजूद है वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफी है शहादत के लिए। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद के एक आयत से, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स अच्छा है? वो शख्स से जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छा अमल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप सभी हजरात का जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही सामीन किराम का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें और इस दीनी काम में हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों की मेहनत को कबूल फरमाएं, दीन और आखिरत में कामयाबी से नवासें। और अब मैं इस दीनी बंद का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद मैं असल डॉक्टर जाकिर नायक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैं जुन्ने ने कह चुका है कि मैं तकरीर में गलतियाँ करता हूँ, उर्दू तकरीर में, तो उनने मेरे माजरत ऑलरेडी मान चुकी है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मेरा एक ख्वाब था कि ऐसी स्कूल बनाएं जिसके अंदर दुनियावी और दीनी तालीम दोनों साथ साथ हो। और IRF कायम करने के बाद चंद साल बाद जब मैं लोगों को इसका जिक्र किया तो अक्सर लोगों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, कि दीन में एक्सपर्ट और दुनिया में एक्सपर्ट मुमकिन ही नहीं है। और जब लोगों से मैं कहने लगा कम से कम आप दुआ तो करो इंशाअल्लाह, तो कुछ लोगों ने आधे दिल से कहा इंशाअल्लाह, कुछ लोगों ने पूरे दिल से कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, जो मकसद था कि जो हमारे वालिदैन ने ज़रूर नहीं समझा कि अरबी ज़बान ज़रूरी है, इसीलिए हमें अरबी ज़बान नहीं आती, तो हमने देखा कि 3 साल की उम्र से हम हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह अरबी ज़बान सिखाएं ताकि उनकी मादरी ज़बान अरबी हो। तो इस स्कूल के अंदर हम अंग्रेज़ी ज़बान के साथ साथ 3 साल के उम्र के बच्चों को शुरू करते हैं अरबी ज़बान, ताकि जब बच्चा 5वीं 6वीं या 7वीं में पहुंच जाता है तो जब कुरान मजीद पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट खुद ही उसे समझ पाएंगा। तो इस नज़र से कायम किए। और जब दावा ट्रेनिंग हम करते थे वो शॉर्ट कोर्स था 40 दिन का, ये हमारा फुल टाइम लॉन्ग कोर्स है 13 साल का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे कि इनॉग्रेशन के टाइम पे भी हमारे स्कूल के कुछ तालिब इल्म माशाअल्लाह अरबी में तकरीर की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि ये ख्वाब पूरा किया कि गैर अरब स्कूल के अंदर हमारे बच्चे माशाअल्लाह उम्दा अरबी बात करते हैं
اور ان کا لہجہ بھی عربوں جیسا ہے الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے استادوں کا جو ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ جانتے ہیں کہ ذاکر بھائی ان کو چھوڑیں گے انہیں, تو میں ہمیشہ ان کے پیچھے رہتا ہوں. کافی لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے. اور ہمارے ٹیچروں کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ ہمارے اسکول کے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اتنا حصہ لیتے ہیں کہ مینجمنٹ کے علاوہ, ٹیچر کے علاوہ پیرنٹ کا جو ساتھ ہے, جو بچوں کو ماشاءاللہ اچھی تربیت دیتے ہیں اور اسکول کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ سارے سپورٹ کے ساتھ ہی الحمدللہ, سب سے پہلے اللہ کا سپورٹ کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے دین اور دنیا میں دونوں میں کامیاب رہیں گے. اور جو یہ آگے نکلیں گے الحمدللہ تو انشاءاللہ یہ جب باہر اسکول کے باہر فارغ ہوں گے, کالج کے بعد انشاءاللہ وہ دعوتی میدان میں جب جائیں گے, عربی کے ساتھ ساتھ جب انگریزی بات کریں گے ماشاءاللہ مہارت کے ساتھ, لوگ الحمدللہ جس طریقے سے علماء کی عزت کرنا چاہیے, جس طریقے سے الحمدللہ کیا یہ ایک نیا مشن, ایک نئی سوچ, ایک نیا دور قائم کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ ان نے یہ کام کرنے کے لیے ہم کو چنا. کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں. جو میرے بیٹے نے آخری 3 آیت کی جو تلاوت کی, سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 9, سورہ فتح چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 28 اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ورس نمبر 33, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلریڈی کہہ چکا ہے کہ یہ دین سارے دینوں پہ غالب ہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کافی ہے, لیکن ہم اللہ سبحانہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا کچھ حصہ لینے کے لیے, ان کے دین کو غالب کرنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین اور خواتین و حضرات, آپ ہمت افزائی کیجئے, ان بچوں کی دعائیں دیجئے ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام لے, دین کا داعی اور اسلام کا خادم بنائے. آمین.